जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर सब्जेक्ट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का जो कल लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने मैकेनिक्स को इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद फिर हमने पोजीशन को डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया और वेलोसिटी को डिस्कस किया। बट वेलोसिटी का कुछ पार्ट रह गया था, वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के हमारे जो लेक्चर्स हैं वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, और उसके बाद मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन आज हमने ये डिस्कस करना है इंशाल्लाह। तो लेट अस स्टार्ट, हम स्टार्ट लेते हैं अपना। तो सबसे पहले जो वेलोसिटी है वो तो हमने पीछे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ लिया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और उसके अलावा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, और इनकी सबकी डेफिनेशंस विद मैथमेटिकली फॉर्म, यूनिट्स, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ये वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली टू टॉपिक्स दैट आर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कंप्लीट करना है इंशाल्लाह मेरा, और वेलोसिटी का कुछ रिमेनिंग पार्ट था वो डिस्कस करना है। ये न्यूमेरिकली और एमसीक्यू टाइप वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस लुक velocity in three dimensions. What does it mean, velocity in three dimensions? As I have told you in previous lecture, I mean to say that three dimension means to say that if a body is moving along x-axis, along y-axis, along z-axis, so that is known as a three-dimensional motion. Two-dimensional motion, what does it mean? Two-dimensional motion means to say that a body is moving in plane. It means to say that in x-axis and in y-axis, that is known as the two-dimensional motion. Okay, so let us take the diagram. To explain the velocity in three dimensions, as let us consider we have a container that is a cubic shaped container in which a gas molecules that is having a small mass m, which is moving along x-axis, along y-axis and along z-axis respectively. It means to say that the velocity of this particle or these molecules will be along y-axis will be vx, along y-axis will be vy, and along z-axis will be vz. So this motion of that particle is known as the three-dimensional motion. Now, three-dimensional motion, as we have looked in the diagram, now take its relation. As we have learned in the previous lecture, velocity is the displacement over time. Means to say that rate of change of displacement with respect to time is known as velocity. Now we are discussing the velocity in three dimensions, the same thing as we have learned in the previous topic, but the something little change is that the velocity is now in along x-axis, along y-axis, and along z-axis. Okay, so the script shows the velocity along x, y, and z-axis as shown from the figure. This relation shows leads to that diagram. Okay, d by dt means to say that a change. As we have learned in the intermediate or the SSC classes, that delta d by delta t is equal to v. Okay, that is the same thing, but now we are using that derivative. In higher classes, instead of delta we are using d. D means to say that complete. That means to say that complete derivative, complete change. Okay, so that is the unit vector I, j, and k. As we have learned in intermediate classes, I shows the x-axis, j shows the y-axis, and k shows the z-axis. These are the unit vectors. Unit vector, what are unit vectors? Unit vectors are the vectors that describe the certain direction of a physical quantity or an object, okay, that is moving in that direction. Okay, now let us take derivative. As you have also learned in the mathematics, how to take derivative of the equation. Okay, that is the equation. Now take derivative means to say that dy by dt with x-axis d over dt with respect to y, and d over dt with respect to z, means to say that that will be multiplied to that quantity, to that quantity, and to that quantity. आपने आसानी के लिए आप कह सकते हैं. Okay, that is the time. That is the same thing. Now take derivative dx over dt, dx over dt with respect to y, dy over dt with respect to j, dz over dt with respect to k. Means to say that that is the change in velocity along x-axis, change in velocity along y-axis, and change in velocity in z-axis. So x, y, and z, that is the distance. Means to say that distance with respect to time will give us velocity. That is vx. Vx shows to vx expose that the velocity along x-axis. Vy that come from that, and the vz
that come from that quantity. Okay, so that is the relation for the three dimensional velocity. ये थ्री डायमेंशनल वेलोसिटी है जब कोई बॉडी x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस में वर्क करेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. That is very important question as well as that is very important equations which leads us to the further topic, that is the acceleration. Okay, now let us take acceleration. What is acceleration? Actually acceleration फिजिक्स में हर एक क्वांटिटी का लिंक दूसरी क्वांटिटी से लाजमी है. जैसे आप कह सकते हैं कि चोली दामन का साथ है. तो पहले हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया. डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया तो वेलोसिटी क्वांटिटी हमारे पास ड्राइव हो गई. फिर एक्सेलरेशन दैट इज आल्सो कम फ्रॉम द वेलोसिटी. तो ये भी एक हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी एक्सेलरेशन दैट कम फ्रॉम द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी कम फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट. Okay, displacement is that is the fundamental quantity. Okay, you have learned fundamental quantities, derivations, the quantities that derive from fundamental quantities you have learned in the previous classes as 9th, 10th, first and second year. Okay, now let us take acceleration. Okay, change in velocity. Now change in velocity with respect to time. It means to say that the change that requires some time. That's why we say velocity with respect to time is known as acceleration. Velocity में तब्दीली की शरह को acceleration कहते हैं. 9th क्लास के तरीके से बताया मैंने आपको. यानी velocity में जो तब्दीली आएगी, अब वो velocity में तब्दीली along x axis भी आ सकती है, y axis भी आ सकती है, z axis भी आ सकती है. As displacement में तब्दीली along x axis जैसे आई थी, y axis आई थी और z axis आई थी. Okay, that is the mathematical form. Acceleration is equal to, ये 9th क्लास जैसा है, but we are in higher classes. We will replace del by d. That is the same thing. That is the same thing. That is the units. अब यूनिट कैसे हम ड्राइव करते हैं ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, बट मैं आप लोगों को फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी. Okay, मीटर पर सेकंड और सेकंड. That is the meter per second velocity unit and time related to second. तो ये जो s नीचे प्लस का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का. तो ये अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को कट कर देते हैं. इसको कट नहीं करना, क्या करना. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग should be kept in mind while discussing the units. Okay, तो ये नीचे प्लस का वहां जाके माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसके दो नेम्स हैं, मीटर पर सेकंड और we can call it as meter per second square. Okay, so that is the definition or the mathematical form plus unit of the acceleration. Okay, now further discuss acceleration. There are many types of acceleration. One is black average acceleration, blue instantaneous acceleration, and green free fall acceleration, and the last is constant acceleration. Okay, now we will take these into discussion further step by step. Okay, let us take average acceleration. What is average acceleration? The definition is that जो सिंपल एक्सेलरेशन होता है उसे एवरेज एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें टोटल जो वेलोसिटी में चेंज आया होता है जो टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो दैट बिकम एवरेज एक्सेलरेशन. दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म dv/dt. याद रखिएगा, मैं बार-बार आपको बता रहा हूं कि dv/dt दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ डेल्टा v और डेल्टा t. दैट इज द सेम थिंग. तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको. अब है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो चले मैं यहाँ पर इसको रेज करने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या चीज होती है जी. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक्चुअली हमारे पास इंस्टेंट एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी इंस्टेंट में किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, किसी भी इंस्टेंट में वेलोसिटी में चेंज आएगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस. नाम से ही जाहिर है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ओके, टेक दिस डेफिनेशन. एक्सेलरेशन at any instant of time. वक्त के किसी भी लम्हे जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. मैं आपको प्रीवियस टॉपिक में भी ये बात बता चुका हूँ सिंपल पेंडुलम वाली एग्जांपल देकर. एक बार फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ मैं
कि suppose that is the point A and that is the point B. A से B तक बॉडी को जाते हुए suppose लगते हैं 10 सेकंड। तो 1 से 10 के दरमियान में जितने भी पॉइंट्स हैं that is known as the instant। मैं कहता हूं कि जो 2 सेकंड है that is also instant। मैं तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी लूंगा तो that is the instantaneous velocity। चौथे सेकंड पे लूंगा तो that is the instantaneous velocity। अगर मैं दूसरे सेकंड पे एक्सेलरेशन को डिस्कस करूंगा तो that is known as the instantaneous acceleration। चौथे सेकंड पे करना चाहता हूं तो that is the instant acceleration। पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, it means to say that इनिशियल से फाइनल के दरमियान में कोई भी पॉइंट लें that is known as instant। मैं कहता हूं कि मुझे यहां पर एक्सेलरेशन लेके दिखा है, बॉडी यहां से यहां मूव कर गया है, बट मैं कहता हूं कि यहां से यहां पर मूव किया है, तो मुझे यहां पर जो एक्सेलरेशन मिलेगा that is known as the instantaneous acceleration। और वो instantaneous acceleration एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है like instantaneous velocity जिसमें आपने क्या पढ़ा था, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, जिसमें वेलोसिटी की जो हमारे पास चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द टाइम दैट अप्रोचेस टू 0, the time that approaches to 0 is known as the instantaneous acceleration। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, वो भी आपको राइट कर देता हूं ताकि आपकी और भी आसानी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, that time approaches to 0। देखिए जरा इस मैथमेटिकल फॉर्म अगर आपने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा हो वेलोसिटी वाला, तो मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया था कि व्हाट इज दिस लिमिट मींस टू से दैट इज वेरी शॉर्ट टाइम। अब यहां से यहां आने के लिए 10 सेकंड लगे हैं, लेकिन यहां से आने के लिए हो सकता है इसे 2 सेकंड लगे हों, या चलिए इसको और भी सिंपल कर लेते हैं 1.5 सेकंड लगे हों उसे। मैं अगर डायग्राम को बड़ा करके बना के दिखाऊं कि ये है जी हमारे पास, अब यहां से यहां तक आने के 10 सेकंड लगे, लेकिन मैं कहता हूं ये यहां से यहां तक आने के टाइम बताएं, दैट इज वेरी शॉर्ट टाइम। इसे कहेंगे इस पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इस टाइम पर, इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो दैट इज द एंड। ओके, दैट इज द फ्री फॉल। अब नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन में है जो वो फ्री फॉल एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं। तो फ्री फॉल एक्सेलरेशन को हम देख लेते हैं, व्हाट इज दिस फ्री फॉल एक्सेलरेशन, क्या चीज होती है जी। फ्री फॉल एक्सेलरेशन मींस टू से दैट, इसके बारे में आप बता दो कि सबसे पहले जो मोशन को डिस्कस किया था बेटा वो किया था गैलीलियो ने। जिस ईयर गैलीलियो की डेथ हुई थी उसी ईयर में न्यूटन की पैदाइश हुई। देखें फॉर्चुनेटली, देखें अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हुई, फॉर्चुनेटली कि एक साइंटिस्ट की डेथ हुई, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली एक साइंटिस्ट क्या हुआ कि बर्थ हुई। तो न्यूटन जो है वो उसी साल पैदा हुआ जिस साल गैलीलियो की डेथ हुई। ओके, तो दैट इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। फ्री फॉल, अ फ्री फॉल दैट इज द स्ट्रेट पाथ। फ्री फॉल क्या होगा, स्ट्रेट पाथ मोशन। जो स्ट्रेट पाथ मोशन होगी ना दैट इज नोन एज द फ्री फॉल एक्सेलरेशन। ओके, व्हेन an object is moving on the surface of earth, that is the surface, it means to say that if a body is moving on that surface, it means to say that we take acceleration a, but if we say that the object is moving above the surface like that, above the surface, then replace a by g. Why? G is the gravitational acceleration, means to say that now the force is acting on a body, that is the gravitational force. The gravitational force will produce gravitational acceleration. Okay, so that will be g. G is equal to, experimentally we have learned in previous classes, 9.8 meter per second square. इसके अगर एग्जांपल आप लेना चाहें तो क्या बनेगी, स्ट्रेट पाथ मोशन। वो स्ट्रेट पाथ मोशन ऐसे हो सकती है, मैं इसे पॉइंटर को ड्रॉ करता हूं, ये पॉइंटर को मैंने ये ऐसे ड्रॉ किया है, ये स्ट्रेट पाथ, दैट इज स्ट्रेट पाथ, और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज नोन एज द फ्री फॉल एक्सेलरेशन, दैट इज स्ट्रेट पाथ एक्सेलरेशन। ओके, लास्ट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हाट इज दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन? कांस्टेंट मींस टू से दैट देयर इज नो चेंज, or we can say that no change in velocity। वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या हो गया, जीरो। अब वेलोसिटी में चेंज जीरो मतलब कि कोई चेंज ही नहीं आ रहा वेलोसिटी में। वेलोसिटी मींस टू से दैट इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
With uniform velocity means to say that no change in velocity. Uniform means to say that constant. Constant means to say that no change. No change means to say that zero, and zero is the constant quantity. So we can say that acceleration is a constant acceleration when there is no change in the velocity. Okay. तो अब हमने ये इसकी टाइप्स थोड़ी सी डिस्कस कर ली थी, बट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन इन 3 डायमेंशन। अब एक्सेलरेशन को 3 डायमेंशन में डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले वही बात रिमाइंड करनी होगी, रिकॉल करनी होगी जो आप वेलोसिटी को लिया था 3 डायमेंशन में। मैंने आपसे कहा था जब मैं टॉपिक की आपको बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लीड अस टू फर्दर टॉपिक्स। ओके, टेक दैट इक्वेशन नंबर 8। तो पहले हेडिंग दे देते हैं एक्सेलरेशन इन 3 डायमेंशन। Acceleration in 3 dimension. Okay. Like that, change in velocity with respect to x-axis, change in velocity y-axis, change in velocity along z-axis with respect to time. तो आप वही करेंगे ना यहाँ पर भी तो वही होगा। तो आपने क्या करना है? That is the velocity x, y and z. Okay. तो that is equal to vxi, vyj. Put arrow on that quantity because velocity is a vector quantity. Okay. Vzk, that is the along z-axis. Okay. Now Vx is equal to Vxi. We can write like separate equation, and that is the Vy is equal to Vy means to say that Vyj. Okay, along the y-axis, and that is the Vzk. अब इन सब का डेरिवेटिव ले लें आप। इन सब का डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव कैसे लेंगे? d ओवर dt एंड d ओवर dt, d ओवर dt. ओके, नाउ दैट इज d ओवर dt, d ओवर dt एंड d ओवर dt। इन सब का डेरिवेटिव ले लें। तो बेटा वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस किसको बताएगा? ये x को नहीं बताएगा, ये किसको बताएगा? a y को, और ये किसको बताएगा? a z को। तो वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू y, y एक्सेलरेशन, विद रिस्पेक्ट टू z एंड द एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन। ये हमारे पास थी वेलोसिटी इन 3 डायमेंशन। मतलब कहने का ये है वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, जो आपको माइंड में अपने रखनी है। तो इसको हम यूं भी तो राइट कर सकते हैं जिस तरह हमने इसको राइट किया है। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी तो राइट कर सकते हैं। a is equal to axi, ayj and azk. जी, that is the acceleration in 3 dimension motion। जब 3 dimension motion होगा तो तब हम इसको डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन को। ओके, फिर हमारे पास है जी मोशन। ये तो एक्सेलरेशन हो गया। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी होंगी। वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लोगों ने, मैं जरा यहाँ पर राइट भी कर देता हूँ, वो आप देख लें कि वो हमारे पास क्या होंगे। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस आप लोगों ने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी आपको याद होगी शायद। दैट इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf is equal to Vi plus At, and that is the first equation of motion. Second equation of motion हमारे पास क्या थी? S is equal to Vit plus half Gt का square, that is equation number 2, and third is equal to 2as is equal to Vf square minus Vi square, that is third equation of motion। और इसके अलावा जो आपने वो पढ़ी थी वो क्या थी हमारे पास? Vab is equal to Vf plus Vi divided by 2, that is the fourth equation। ओके, तो इसमें बेटा याद रखिएगा बात कि जब मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन को डिस्कस करने जा रहे होते हैं तो
तो याद रखिएगा इसमें स्ट्रेट पाथ होता है। ये जब बॉडी इसमें कंडीशंस याद रखिएगा, कंडीशंस बता दूं मैं आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट पाथ यानी सीधी लाइन में मोशन होनी चाहिए। पहली बात तो जब इन क्वेश्चन को यूज करेंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। ये आपने बातें याद रखनी है, माइंड में रखनी है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी में चेंज कम से वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, जीरो। ओके, तो ये क्वेश्चन हम तब यूज करेंगे। ओके, तो अब जरा देखें ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, सो दैट इज द फोर्थ इक्वेशन, दैट इज नाउ द एवरेज वेलोसिटी सम ऑफ टू वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टू। एवरेज मींस एवरेज कैसे निकालते हैं, तमाम वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय टोटल जो होता है वैल्यू, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस कर रहे हैं जी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली वैल्यूज। तो ये आपकी जो बुक है उस पे जो पेज नंबर है जी 23, इस पे आप लोगों को ये वैल्यूज गिवन हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको यहाँ पर सारी गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मोशन जो आपकी बुक में राइट किया हुआ है, उसने जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा वी आई पोर्शन लिखा हुआ है वी ओ या वी नॉट, और जो वी एफ है उसमें क्या लिखा हुआ है वी। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, या उसने जो डिस्प्लेसमेंट एस है वो क्या किया हुआ है, एक्स किया हुआ है, एक्स माइनस एक्स नॉट किया हुआ है। तो एक्स नॉट हमारे पास क्या होगा, इनिशियल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, और जो एक्स है वो क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो इससे घबराना नहीं, तो हम इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें तो लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, जब बॉडी कहाँ होगा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, याद रखिएगा। अब एक्सेलरेशन में दो चीजें और आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है कि हमारे पास a इज इक्वल टू जब g होगा तो g पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, और g इज इक्वल टू नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड भी होता है। मैं आपको ये बातें बताया जा रहा हूं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव g व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स टू से दैट टूवर्ड्स अर्थ, टूवर्ड्स अर्थ। जब टूवर्ड्स अर्थ हो, टूवर्ड्स अर्थ मींस टू से दैट कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, तो ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अर्थ आ रहा हो, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव 10, 9.8 को रिप्लेस कर दिया। और नेगेटिव 10 क्या होगी, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जमीन से दूर जा रहा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लग रही है, डाउनवर्ड, बट ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, अपवर्ड। तो देखिए ये डायरेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। और सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स स्टेटमेंट में जो न्यूमेरिकल्स होती हैं ये वैल्यूज स्किप होती हैं, या कभी कभी बताई भी होती है, कभी कभी स्किप होती है, तो बट यू हैव टू लर्न। ओके, तो उसके बाद हमारे पास है ये हमारे पास जो आपकी बुक में दी हुई इक्वेशंस, इस इक्वेशन को ऐसा राइट कर सकते हैं, दैट इज द x माइनस x नॉट फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू v नॉट t प्लस 1/2 gt का स्क्वायर। अब ये प्लस का g आया हुआ है, इट मींस टू से दैट कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ। इसको यूं भी लिख सकते हैं x माइनस x नॉट इज इक्वल टू v नॉट t माइनस 1/2 gt का स्क्वायर। It means to say that now that negative sign shows that the object is moving from the earth, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, जमीन से दूर जा रहा है। ओके, तो दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट आल्सो राइट एज 2gs is equal to v square minus v naught square। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे भी राइट कर सकते हैं, या इसको आप भी राइट कर सकते हैं 2g x minus x naught like this, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ये
और यहाँ पर s। तो क्या हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। इसकी एक और मॉडिफाइड फॉर्म भी है, वो क्या है x माइनस x नॉट 2g मल्टीप्लाई वहाँ जगह क्या हो जाएगा डिवाइड 1/2g v स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर, ये भी राइट कर सकते हैं आप लोग। तो ये मॉडिफाइड इक्वेशंस की जो आपकी बुक में दी हुई थी, तो इनसे घबराना नहीं है आप लोगों ने। वेरी सिंपल सी इक्वेशंस है हमारे पास। ओके अच्छा जी, मैं आपको वो ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप बातों में कुछ और चीज़ें बताना जा रहा हूँ कि वो आप लोगों को इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। वो क्या है, देखिए बेटा एक्सेलरेशन जो है पास दो तरह के और भी होते हैं, दैट इज द होते हैं वो सिंपल एक्सेलरेशन ही है, लेकिन वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कहलाता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहलाता है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन